مانگا سود پر، اور بار بار میں سود کے خلاف بیل بھی میں نے قومی اسمبلی میں لایا ہے اور بات بھی کر رہا ہوں، اور میرے ساتھ الحمدللہ ہمارے وفاقی وزیر پارلیمانی امور علی محمد صاحب بھی کھڑے ہیں، اور بھی اراکین ہیں جو سود کے خلاف ہیں، لیکن عملاً اس وقت ہمارا بجٹ جو ہے وہ سودی کاروبار پر منحصر ہے۔ جناب اسپیکر، جب تک ہم سودی کاروبار کو ہم اپنے معاشی نظام سے، مالیاتی نظام سے نہیں نکالیں گے، اس وقت تک ملک جو ہے وہ استحکام کی طرف نہیں جا سکتا۔ اسی وجہ سے میری درخواست یہ ہے کہ جو یہاں نوجوانوں کے لیے قرضے میں بھی 3 اور 4% کی شرح رکھی گئی ہے اس کو بھی ختم کر دیا جائے، اور وہ بل جو میں نے قومی اسمبلی میں پیش کیا ہے، جو گورنر اسٹیٹ بینک لے کے گئے ہیں کہ ہم اس پہ دیکھیں گے اور اس میں جو کچھ مزید اضافہ یا ترمیم کرنی ہو تو وہ کر کے ہم کو دے دیں گے، اور ان کو بھی چاہیے کہ فوری طور پر وہ بل اسمبلی میں لے آئیں اور وہ پیش کریں اور یہاں سے اس کی منظوری ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے جناب اسپیکر، حقیقت یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم اس بات پہ خوش ہیں کہ موجودہ حکومت اسلامی ریاست کی بات کر رہی ہے۔ اگر اسلامی ریاست میں سودی کی نبی علیہ السلام کے دور میں سود کی کوئی گنجائش نہیں تھی، تو اب بھی موجودہ وقت میں جو دعویٰ کی جا رہی ہے اس کے مطابق سودی کاروبار کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ جناب اسپیکر، یہ آئین پاکستان کے بھی خلاف ہے۔ اگر آپ سود بمعاش سود اس بجٹ کی منظوری دیتے ہیں تو یہ آئین پاکستان کے بھی خلاف ہے، یہ قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ میدان جنگ میں اترنا ہے۔ اسی وجہ سے میری درخواست بھی ہے، مطالبہ بھی ہے کہ سودی جتنے بھی مالیاتی اس میں نظام میں رکھا گیا ہے یا قرضے میں سود رکھا گیا ہے اس کو فوری طور پر ختم کی جائے۔ نمبر 2 جناب اسپیکر، سرکاری ملازمین، ان کے ساتھ ظلم ہو چکا ہے، زیادتی ہو چکی ہے، اور تقریباً مہنگائی 50-60% بڑھ گئی ہے، اور ان کے تنخواہوں میں 10 یا 20% کا اضافہ نہیں کیا گیا، اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ تمام ملازمین، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10 سے 20% اضافہ کیا جائے۔ اور اسی طرح جناب اسپیکر، میرے محترم دوست بھائی، میرے وزیر قانون صاحب نے 2-3 دن پہلے بابر اعوان صاحب نے یہاں ارشاد فرمایا، انہوں نے مدارس کا ذکر کیا۔ میں اس پہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مدارس کے کردار پر دل سے 1-2 باتیں انہوں نے کی۔ ایک تو یہ کہا کہ 35-40 لاکھ طلباء و طالبات دینی مدارس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، مفت تعلیم، ایجوکیشن مفت، خوراک مفت، رہائش مفت، بجلی مفت، سوئی گیس مفت، پانی مفت، اور یہاں تک کہ علاج بھی ان کا مفت، اور یہاں تک کہ اگر کوئی طالب علم گھر جا رہا ہو، ان کے پاس پیسے نہ ہوں تو مدرسہ جو ہے ان کو وہ بھی دے دیتی ہے۔ تو میری درخواست یہ ہے کہ ان مدارس اصلاح کے نام پر نہیں، مدارس میں اصلاح ہے، یونیورسٹیوں میں اصلاح کریں، کالجوں میں اصلاح کریں، دیگر جو ہمارے ادارے ہیں اس میں اصلاح کے لیے پیسے رکھیں، لیکن مدارس کی جو بجلی بل ہے، سوئی گیس بل ہے، اور اسی طرح مساجد دیکھیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدوں کا جو کہا گیا ہے قرآن مجید میں مسجدوں کے بارے میں، مسجد کو اللہ کا گھر قرار دیا گیا ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے ہیں۔ جب اللہ کا گھر ہو اور اللہ کے گھر کے لیے یعنی بجلی بل بھی معاف نہ ہو، اور ایک اس کرائسس میں ان کے لیے کوئی رعایت نہ ہو، اور ایک خاص طبقے کو فنکار کا نام دے کر ان کے لیے 1 ارب رکھا جائے، میرے خیال میں یہ اسلامی ریاست کے منافی کام ہے۔ اور میرا مطالبہ یہ ہے کہ جتنے بھی مدارس ہیں، مساجد ہیں، ان کے بجلی کے بل معاف کیے جائیں، اور وہاں جو اساتذہ ہیں، استانیہ ہیں، ان کو ریلیف پیکج میں شامل کیا جائے اور ان کو خصوصی ریلیف پیکج دیا جائے۔ جناب اسپیکر،
इसी तरह स्टील मिल के मुलाजिमीन, ये मैंने कहा कि जब मेरा ताल्लुक़ जमात इस्लामी पाकिस्तान से है और मुत्तहिदा मजलिस अमल से, मुत्तहिदा मजलिस अमल में जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी हैं, हम दोनों स्टील मिल के प्राइवेटाइजेशन के शदीद मुखालिफ भी हैं और मुखालिफत करते रहेंगे। और वहाँ जो 9,300 मुलाजिमीन हैं उसको बहाल रखा जाए। स्टील मिल एक मुनाफा बख्श 2009 तक, जिस तरह मेरे भाई कल यहाँ उन्होंने फरमाया कि 2009 तक, मुराद सईद साहब ने 2009 तक वो मुनाफे पे जा रहा था, लेकिन 2009 के बाद वो हुकूमतें आई जिसने उनका बेड़ा गर्क कर दिया। तो अब मेरा मुतालबा यह है कि इसको चलाया जाए, मुनाफा बख्श एक इदारा बनाया जाए इसको, ताकि मुल्क को भी इससे कुछ फ़ायदा हो। और वहाँ के जो मजदूर हैं, काम कर रहे हैं, अभी तक अपना खून पसीना उन्होंने उसमें लगाया है, उन लोगों को बेदखल नहीं किया जाए, उनको बेरोज़गार नहीं किया जाए। जनाब स्पीकर, इसके अलावा जनाब स्पीकर, इस वक्त हकीकत यह है कि मैं किसी पर तंज़ या तनकीद नहीं, लेकिन हकीकत बयान कर रहा हूँ। मोहतरम वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब, जो हम सब के वज़ीर आज़म हैं, किसी एक पार्टी का नहीं है, उन्होंने अपने इक़्तिदार से पहले फरमाया था कि IMF में जाना खुदकुशी है। और आज जो बजट पेश किया गया है जनाब स्पीकर, हकीकत यह है, एक खुदकुशी जो है वो अपने आप को मारना है और दूसरा आवाम के साथ मजाक है। और ये इस बजट में आवाम के साथ मजाक किया गया है। आवाम को कुछ भी नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं दिया गया, उसका जिक्र ही इसमें नहीं है। अगर टैक्सेस इस दफ़ा नहीं लगाए, लेकिन गुज़श्ता साल इसका मदावा किया गया था, 8% से 17% तक लगाया गया था। और आवाम के लिए इस बजट में हकीकत यह है कि कुछ भी नहीं है, आवाम के लिए उसमें कुछ रिलीफ होने चाहिए। जनाब स्पीकर, पेट्रोलियम मसनूआत के सिलसिले में मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जो लोग दर पदर ठोकरें खा रहे हैं, जलील हो रहे हैं, रसवा हो रहे हैं और पूरा दिन जो है पेट्रोल के हुसूल में वो लगा रहे हैं, जनाब स्पीकर, मैं तो ये कहूँगा कि हुकूमत की रिट कमज़ोर है और ये रिट कायम होना चाहिए, ये मार्केटों पर भी कायम होना चाहिए। जिस तरह आपने देखा कि मसाजिद पर आप लोगों ने अपना रिट कायम किया, आपने 5 बंदों को नमाज जुमा के लिए इजाज़त दे दी, हमने वो जो है फॉलो किया, हमने तस्लीम किया, हमने SOPs के तहत मस्जिदें चलाई, मदरसे चलाए। हमारे मदारिस, मेरा अपना मदरसा अब भी बंद है, हम दाखिले भी नहीं कर सकते SOPs की फॉलो करने की वजह से। तो मेरा मुतालबा ये है कि जनाब स्पीकर, अगर मार्केट में कोई चीज़ शार्ट होती है, ये पेट्रोल पंप जो है ये हमारे ज़ेर नज़र हैं, हम देख रहे हैं उनको, उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही? सिर्फ एक पाकिस्तान सर्विस ऑयल और शील कंपनी, इस 2 कंपनियों में लोगों को पेट्रोल मिलता है, बाकी किसी पंप में नहीं मिलता। जनाब स्पीकर, इस पे हुकूमत को फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए। अगर एक दफ़ा एक्शन ले ले तो पूरा साल आराम से वज़ीर आज़म साहब अपने कमरे में, अपने हाउस में बैठेंगे और आप यहाँ बैठेंगे, कोई शिकायत नहीं होगी। और जब इस तरह हम ढीला ढाला छोड़ेंगे तो यही लोग, दूसरा माफिया आ जाएगा, तीसरा माफिया आ जाएगा, चौथा माफिया आ जाएगा और ये मुल्क जो है फिर रहने का काबिल नहीं रहेगा। थैंक यू जनाब स्पीकर। अब आता हूँ मैं अहम काम की तरफ। जनाब स्पीकर, मैं चित्राल के जो मेगा प्रोजेक्ट है, और यकीनन मैंने कल इसका जायज़ा लिया, ये तकरीबन 70 अरब से कुछ अबाव मनसूबाजात है। यहाँ जहाँ तक इन मनसूबाजात को PhD में शामिल करने पर मैं मरकज़ी हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन साथ साथ जनाब स्पीकर, कुछ मेरे मुतालबात हैं और मैं अपने वज़रा साहिबान को भी, ख़ासकर अली मोहम्मद साहब को भी ज़रा तवज्जो से मेरा सुने कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। लावारी टनल अप्रोच रोड के कुल लागत 26,865 मिलियन है। उसके लिए जो रकम मुख्तस किया गया है वो 2,000 है और गुज़श्ता साल के भी तकरीबन कोई 250 मिलियन बकायजात है, तो इसमें इजाफा किया जाए। चित्राल ओयोन रोड, अयोध बुम्बुरेद रोड, ये 4
4600 मिलियन है, और इसके लिए जो रकम रखा गया है वो 500 है। और इसी तरह चित्राल गर्म चश्मा रोड 8314 मिलियन इसके लिए रखा गया है, और इस दफ़ा इसके लिए 300 मिलियन रखा गया है। और इसी तरह चित्राल बुनी शंदूर रोड 16,755 मिलियन रुपए है कुल लागत, और इसके लिए 350 मिलियन रखा गया है। गुज़श्ता साल 1000 मिलियन था। जनाब स्पीकर, ये 300 या 500 मिलियन से या 350 17 अरब रुपए का मंसूबा है, और 350 मिलियन रुपए रखे गए हैं। क्या ये तो हाथी, एक मिनट जी, काफी मैं आपके कारकर्दगी बता रहा हूँ। अच्छा, तो ये जो है ये हाथी के मुंह में ज़ेरा के बराबर भी नहीं है। और इसके बाद कलकटक चित्राल द्रोश रोड, चिकिदरा चित्राल रोड जिसको कहा जाता है, उसमें कलकटक से अभी काम शुरू हो रहा है। ये 17,423 अरब रुपए और 250 मिलियन जो है ना जी इसमें रखे गए हैं। और इसी तरह जनाब स्पीकर, मुख्तलिफ देहात को ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए और ट्रांसफार्मर वगैरह मुहैया करने के लिए गुज़श्ता साल 2,911 मिलियन रुपए रखे गए थे। इस दफ़ा कटौती करके 1558 मिलियन रखा गया है, और इसके लिए सिर्फ इस साल जो है 150 मिलियन रखा गया है। जनाब स्पीकर, और इसी तरह ग्रेजुएशन के लिए 309 और उसके लिए 159 मिलियन रुपए रखे गए हैं। और ये चित्राल हाइडल पावर स्टेशन के लिए 2000 माशाल्लाह, आपके चित्राल के लिए तो पूरा हिस्सा मिल गया। आप जरा देखें, मैं अर्ज कर रहा हूँ जी। तो क्या ख्याल है बेंगल साहब, इसने तो काफी शेयर लेके गए हैं। 2188 रुपए, और इसके लिए जो रखा गया है 123 मिलियन रुपए। जनाब स्पीकर, गुज़श्ता साल 38,226 रुपए रखे गए थे। इस दफा उसमें कटौती करके ये 21,000 रखे गए हैं। थैंक यू। एक तो नहीं जी है काफी नहीं, चूंकि टाइम आपने मेरा एक मिनट में खत्म कर। नहीं, 1 मिनट में तो मुश्किल है जी, लेकिन जी आप भी 5 मिनट मुझे दे देना। चलो, पार्टी का टाइम खत्म हो गया, सब कुछ हो गया। आप भी बड़ा पलों का नहीं, दूसरों का मुजाहरा तो करें ना जी। आप अपने पार्टी का टाइम लेते हैं, आपने असद महमूद का टाइम लेना है। 5 मिनट आप मुझे दे दे जी, मैं आपसे मांगता हूँ जी, प्लीज दे दिया ना जी, शुक्रिया। जनाब स्पीकर, इसी तरह गोलंगोल हाइडल पावर के लिए ये 988 मिलियन रखे गए हैं। जनाब स्पीकर, गुजारिश मेरी यह है, लोग हमें कहते हैं कि PSDP ये जो है ये 2018-19 में भी ये रखे गए थे, 2019-20 में भी ये रखे गए थे, अब 2020-21 में भी ये रखे गए हैं। लोग ये पूछते हैं कि काम कब शुरू होगा। मैं वज़ीर मुवासलात और वज़ीर पावर ये दोनों जो हैं इनसे मैं मुतालबा करता हूं, मैं सवाल करता हूं, मैं दरख्वास्त करता हूं कि मुझे